Hi guys, welcome on my YouTube channel whose name is Socially Social. I am your YouTube teacher. No need to introduce myself or tell my name. I am Umesh Rangale. So today we are moving to the second and last part of the chapter or topic climate. So yesterday or we can say in the first video we have seen what is the meaning of climate, what is the meaning of climate and what factors are responsible for the changing in climate. So moving to the next topic, these are four seasons. So definitely due to the variation in temperature or due to the direction of the wind, the seasons and other things are also responsible for the for the for the different kind of seasons. So in our India, generally our seasons are classified in four categories. चार कैटेगरीज में हमारे सीजन्स को हमने क्या किया है, डिवाइड किया है. सो दिस सीजन्स आर द हॉट एंड ड्राई समर सीजन्स, द हॉट एंड ड्राई समर सीजन्स. Hot and dry summer seasons, definitely in short we used to call them summer season. And what is the period of this season? What is the period of this season? The period of this season is March to May. March to May. These 3 months are covered in hot and dry summer seasons. Second is the hot and wet rainy seasons. Hot and wet rainy season. It is simply called rainy season. The period of this season is June to September. June to September. In detail, very soon we will see. The third one is retreating southwest monsoon season. Retreating southwest monsoon season. It is known as retreating season. It is known as retreating season. Its real name is the retreating southwest monsoon season because the southwest monsoon winds are getting back in this season. Only 2 months are given, and these months are October and November. Then fourth and last is the cold and dry winter season. Simply we used to call him winter season, and the months here are given December to Feb. December to Feb. So in detail we will see each and every season. Already it is given in our syllabus. Dear students, generally if the topic will ask in ICSE book, total 10 marks questions are there on the base of climate. Question number 4, generally question number 4 used to ask on the topic of climate, and in other boards at least 3 to 4 mark questions used to ask here. So moving to the fourth season, it is the hot and dry season, जिसको हम क्या बोलते हैं, समर सीजन बोलते हैं. ये जो समर सीजन हम देखेंगे डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस वी विल सी. सो समर सीजन क्यों होता है? क्योंकि हमारा सन का जो क्या बोलेंगे मूवमेंट है, सन का जो मूवमेंट है किधर की तरफ जाता है, नॉर्थ के तरफ जाता है, और सन इज मूविंग टू द नॉर्थ, और नॉर्थ की तरफ जाने के कारण उसकी मूवमेंट नॉर्थ की तरफ होने के कारण नदर पार्ट का हमारा टेम्परेचर क्या होते जाता है, राइज होते जाता है. और नदन जो हमारा जो नॉर्थ वेस्ट जो इंडिया का जो पोर्शन है, यहाँ तो टेम्परेचर कहाँ तक चले जाता है, 48 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है. सो व्हाट इज द टेम्परेचर कंडीशन इन हॉट एंड ड्राई समर सीजन? नॉर्दर्न इंडिया में सबसे ज्यादा 48 टू 50 डिग्री सेल्सियस, और वही अगर सदर्न इंडिया की बात करते हैं या साउथ पोर्शन की बात करते हैं तो वो कितना होता है, 26 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है. अब आप बोलेंगे कि सर इंडिया तो एक ही है और नॉर्थ में इतना ज्यादा क्यों, साउथ में इतना कम क्यों? क्योंकि हमने अभी बोला है कि जो सन की जो मूवमेंट है वो किधर रहती है, नॉर्थ की तरफ रहती है. जो नॉर्थ वाला जो पोर्शन है वो इंटीरियर पार्ट में आता है, कॉन्टिनेंटल टाइप का क्लाइमेट की कंडीशन होती है.
सीज आर ओशियन बॉडी से फार अवे है, दूर है, इसलिए वहाँ का टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वही सदर्न इंडिया की अगर बात करते हैं तो सीज और ओशियन के सराउंडिंग आती है। पेनिनसुला वाला एरिया जो अगर बात करेंगे, सीज और ओशियन वहाँ पर ज्यादा है, सॉरी सराउंडिंग है, जिसके कारण वहाँ का टेम्परेचर कितना रहता है, 26 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक आता है। देन उसके बाद में देखेंगे प्रेशर कंडीशन, एयर प्रेशर का कंडीशन कैसा होता है। सो एयर प्रेशर को जानने का एकदम इजी फार्मूला है कि जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा एयर प्रेशर हमेशा क्या होगा, कम होगा, और जहां का टेम्परेचर कम होगा वहां का एयर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आया हमने क्या बोले, जहां टेम्परेचर ज्यादा एयर प्रेशर कम, जहां टेम्परेचर कम वहां पर एयर प्रेशर ज्यादा। और जनरली हमारे जो विंड्स है, जनरली हमारे विंड्स है, दे यूज टू ब्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। हमारे जो विंड्स है वो कहाँ कैसे ब्लो करते हैं, किधर कौन से डायरेक्शन में जाते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाते हैं। सो प्रेशर अगर कंडीशन अगर देखते हैं तो जनरली जो नदर्न पोर्शन है, जिसको जैसा थार डेजर्ट वाला एरिया हो गया, या तो फिर छोटा नागपुर वाला प्लेट्यू वाला एरिया हो गया, यहाँ पर हमारा लो प्रेशर एरिया क्या होता है, डेवलप होता है। और जो विंड्स है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्या करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, ब्लो करते रहते हैं। ये जो समर सीजन है, समर सीजन में डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्या होते हैं, विंड्स ब्लो करते हैं। अब विंड्स जो ब्लो करते हैं वो तो एक ही प्रकार के होते हैं, मगर उनको रीजनल जो नेम्स हैं वो क्या दिए हैं, अलग दिए हैं। तो रीजनल नेम की अगर बात कर लेते हैं तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जहाँ पर टेम्परेचर की रेंज ज्यादा होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है 48 डिग्री 45 डिग्री के ऊपर ही होता है, जहाँ पर जो डे टाइम के समय में हॉट विंड्स जो ब्लो करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। हमारे तरफ भी आपने देखा होगा कि हमारी दादी या तो मम्मी जब भी हम गर्मी के दिनों में दोपहर को बाहर निकलते हैं, सो और दादी और मम्मी यूज्ड टू से बाहर अभी नहीं जाना, क्या लग जाएगी, लू लग जाएगी। तो ये जो लू है ये क्या है, हॉट विंड्स है। ये क्या है, हॉट विंड्स है। उनको नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट एरिया में कौन से नाम से बुलाया जाता है, लू के नाम से बुलाया जाता है। देन उसके बाद में डस्ट टर्म की बात करते हैं। इसी समय में डस्ट टर्म्स आते हैं, जनरली पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में डस्ट टर्म्स बहुत आते हैं। उन डस्ट टर्म्स को उस एरिया में टोर्नेडो के नाम से क्या किया जाता है, उनको बुलाया जाता है या कहा जाता है, लिखा जाता है। देन उसके बाद में असम हो गया या तो वेस्ट बंगाल हो गया। तो यहाँ पर थंडरस्टॉर्म्स आते हैं, थंडरस्टॉर्म्स आते हैं, बिजलियां वगैरह कड़कती है स्टॉर्म्स के तूफान के साथ में। तो जो असम वगैरह है या असम में उसको बारदोली चिर्रा बोलते हैं, जो विंड्स होते हैं उनको बारदोली चिर्रा बोलते हैं। जबकि वेस्ट बंगाल में उसको क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज काल बैसाखी। वेस्ट बंगाल में उनको क्या बोलते हैं, काल बैसाखी बोलते हैं। काल बैसाखी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी ये विंड्स यहाँ से ब्लो करते वेस्ट बंगाल में आते हैं, एंटर करते हैं, तो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज का और ह्यूमन लाइफ का लॉस करते हैं, यानी नेचुरल कैलेमिटी लेकर आते, कैलेमिटी लेकर आते, इसलिए काल बोलते हैं। और बैसाख मंथ में आते इसलिए उसको बैसाखी बोलते हैं। सो जो वहाँ के जो लोकल जो विंड्स है जो ब्लो करते हैं कौन से, बैसाख महीने में, जो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं। इसलिए वेस्ट बंगाल में ये जो विंड्स है इनको क्या बोलते हैं, काल बैसाखी भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से हॉट एंड ड्राई समर सीजन में, जिसका 3 मंथ्स का क्या है, पीरियड है, अलग अलग जगह पर अलग अलग विंड्स ब्लो करते रहते हैं। जनरली टेम्परेचर की जो कंडीशन रहती है, टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है एंड कंपेयर टू सदर्न इंडिया, नदर्न इंडिया का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है। देन उसके बाद में मूविंग टू द सेकंड सीजन, द हॉट एंड वेट रेनी सीजन। द हॉट एंड वेट रेनी सीजन, सभी सीजन देखने के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जनरली नदर्न इंडिया में पूरे जो चारों जो स्टेट्स है वो क्लियरली हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। मगर सदर्न इंडिया में ये जो सभी सीजन्स है वो क्लियरली विजिबल नहीं है, इनको क्लियरली हम महसूस नहीं कर सकते। नदर्न इंडिया में इनको बहुत ही क्लियरली क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। किसको,
चारों सीजन को। अभी बात किसकी चल रही है? वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस 4 सीजन। सो मूविंग टू द सेकंड सीजन, द हॉट एंड वेट रेनी सीजन, जिसको हम रेनी सीजन बोलते हैं। जो रेनी सीजन का जो पीरियड हमने ऑलरेडी नोट करके दिया है, जून टू सितंबर। यहाँ पर जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है, उनसे साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है, वो ब्लो करते रहते हैं, इसलिए इसको साउथ वेस्ट मानसून सीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट मानसून सीजन। जनरली इसी सीजन का नाम क्या है? क्या है? साउथ वेस्ट मानसून सीजन। तो रेनी सीजन को हम साउथ वेस्ट मानसून सीजन भी बोलते हैं। यहाँ पर जो टेम्परेचर है, ये अगर इस किधर इंटीरियर पार्ट की अगर बात करें तो टेम्परेचर तो ज्यादा ही रहता है, टेम्परेचर तो ज्यादा ही रहता है, इसलिए हमने किसको क्या लिखा है? द हॉट एंड वेट रेनी सीजन। गर्म होता ही है, टेम्परेचर होता ही है, तो टेम्परेचर उतना नहीं होता जितना कौन से सीजन में होता है? समर सीजन में होता है, मगर फिर भी नदर्न पार्ट में इसका लगभग 31 to 32 डिग्री सेल्सियस इंटीरियर पार्ट्स में होता है। और वही अगर हम कोस्टल एरियाज की तरफ आ जाते हैं तो वहां पर टेम्परेचर कहाँ तक आता है? 22 डिग्री सेल्सियस तक आता है। तो यहाँ पर ये बोला कि जब भी रेनी सीजन में जब पहली बरसात आती है, कहाँ क्या आती है? पहली बरसात आती है, उसको बोलते हैं ब्रस्ट ऑफ मानसून। क्या बोलते हैं? ब्रस्ट ऑफ मानसून। तो ये जो मानसून जब फर्स्ट टाइम कोस्टल एरियाज में आता है, कोस्टल रीजन्स में आता है, वहां के एरियाज को हीट करता है और रेनफॉल होता है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रस्ट ऑफ मानसून बोलते हैं। मगर इस सीजन में कुछ समय के लिए मानसून की क्या होती है? गैप भी होती है। अब हर दिन या हर समय बारिश आएगी इन द पीरियड ऑफ रेनी सीजन? आपने भी देखा होगा कि आज बारिश आई, 2-4 दिन तक आती नहीं, उसके बाद में बहुत आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मे बी कंटिन्यूस 1, 2 और 3 डेज इट इज रेनिंग कंटिन्यूसली, मगर हमेशा नहीं आती है, 2-3 दिन के लिए खुल जाती है। तो ये जो बीच का जो गैप होता है, ये जो बीच का जो गैप होता है, किसका? रेनफॉल का या रेनिंग का, इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ मानसून। इसको क्या बोलते हैं? ब्रेक ऑफ मानसून बोलते हैं। सो यहाँ पर जनरली साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ब्लो करते हैं, मगर साउथ वेस्ट मानसून विंड्स के भी दो क्या होती रहती है? ब्रांचेस रहती है। पहली जो ब्रांच आती है वो कहाँ से आती है? द फर्स्ट ब्रांच कम्स फ्रॉम दी अरेबियन सी। कहाँ से आती है? अरेबियन सी से आती है। और जो सेकंड ब्रांच जो रहती है वो कहाँ से आती है? इट कम्स फ्रॉम दी बे ऑफ बंगाल से आती है। सो जनरली जो अरेबियन सी से जो ब्रांच आती है वो भी फिर से कहाँ पर चले जाती है? 3 छोटी छोटी सब ब्रांचेस में होकर नदन पार्ट के तरफ में जाती है। और ये जो बे ऑफ बंगाल वाली जो ब्रांच है, ये पूरा हमारे इंडिया में इससे रेनफॉल नहीं होता। कुछ अदर कंट्रीज में, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है, वहां पर लोग क्या करती है? रेनफॉल करती है। और जैसा महाबलेश्वर में सबसे ज्यादा क्या होता है? बे ऑफ बंगाल ब्रांच से रेनफॉल होता है। और वही अगर देखा जाए तो पुणे का जो एरिया होता है, क्योंकि पुणे कहाँ पर चले जाता है? लिवाड़ साइड में जाता है, यानी रेन साइडो एरिया में आता है, तो वहां पे रेनफॉल हमारा कम होता है। सो साउथ वेस्ट मानसून सीजन की दो ब्रांचेस, फर्स्ट ब्रांच इज अरेबियन सी एंड सेकंड ब्रांच इज बे ऑफ बंगाल। देन उसके बाद में हम बात करते हैं रिट्रेटिंग साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। अभी तक साउथ वेस्ट मानसून विंड्स किधर गए थे? चाहे तो ईस्ट कोस्ट से है, चाहे तो वेस्ट कोस्ट से है, और वो कहाँ तक जा रहे थे? कहाँ तक जा रहे थे? नदर्न इंडिया की तरफ जा रहे थे। मगर यहाँ सामने नदर्न इंडिया में जाने के बाद में, क्या हो जाता है? ये जो मानसून विंड्स है ये रिटर्न होना स्टार्ट हो जाता है। रिटर्न होना स्टार्ट होता है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? रिट्रेटिंग मानसून बोलते हैं। और रिट्रेटिंग मानसून का जो सीजन होता है वो बहुत कम पीरियड का दिया हुआ है, ओनली 2 महीने का दिया हुआ है, अक्टूबर एंड नवंबर। अब इसके फीचर्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है? तो जनरली इस पीरियड में जो हमारे जो स्काई होता है वो बिल्कुल ही क्लियर होता है, क्लाउडलेस होता है, और टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ह्यूमिडिटी भी बढ़ने लगती है ना।
अब टेम्परेचर बढ़ता है, ह्यूमिडिटी बढ़ती जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, और ये भी कौन से मंथ में होता है, अक्टूबर मंथ में होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इट इज आल्सो नोन एज अक्टूबर हीट के भी नाम से इसको जाना जाता है। तो ये जो रिट्रेटिंग मानसून सीजन है, इट इज ट्रांजिशनल पीरियड, इट इज ट्रांजिशनल पीरियड। अब ये ट्रांजिशनल पीरियड क्यों है, क्योंकि हॉट एंड ड्राई रेनी सीजन को काय में ट्रांसफर कर रहा है, ये काय में विंटर सीजन में उसको क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। ये दो सीजन का बीच का जो सीजन है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रिट्रेटिंग मानसून सीजन को ट्रांजिशनल पीरियड और ट्रांजिशनल सीजन भी बोला जाता है। तो रेनी सीजन और विंटर सीजन के बीच वाला जो पोर्शन है, जहां पर स्काईज कैसे होते हैं, क्लियर होते हैं, अक्टूबर मंथ में जो टेम्परेचर है वो राइज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए इसको अक्टूबर हीट के भी नाम से जाना जाता है। देन मूविंग टू द फोर्थ सीजन एंड इट इज द कोल्ड एंड ड्राई विंटर सीजन। विंटर सीजन की अगर बात कर लेते हैं तो जनरली 3 मंथ हमने दिया है, दिसंबर टू फेब, मगर सबसे जो कोल्डेस्ट मंथ है जनवरी। कोल्डेस्ट मंथ कौन सा आता है, जनवरी आता है। तो यहाँ की अगर टेम्परेचर की अगर बात करेंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अब बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो सदर्न का और नदर्न का, नॉर्थ का और साउथ का टेम्परेचर एक जैसा कम होता है, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि नॉर्थ में क्या है, कॉन्टिनेंट टाइप का क्लाइमेट है, वो हमारा इंटीरियर पोर्शन में आता है, सीज और ओशियन से दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस पर है, इसलिए नॉर्दर्न इंडिया का टेम्परेचर बहुत ही तेजी से नीचे जाता है और सदर्न इंडिया का टेम्परेचर उसके कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं थिरुवनंतपुरम का जो टेम्परेचर है, इसका थिरुवनंतपुरम का अगर टेम्परेचर है तो कहाँ पर रहता है, सदर्न के तरफ में 31 डिग्री सेल्सियस है। कैलिकट का अगर देखेंगे 26 डिग्री सेल्सियस आता है। चेन्नई की अगर हम बात कर लेते तो 24 डिग्री सेल्सियस आता है। और वही अगर वाराणसी की बात करते हैं थोड़ा और ठंडा हो जाता है, 16 डिग्री सेल्सियस। और जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं तो वो बहुत कम में हो जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है। सो इस पीरियड में बहुत ज्यादा क्या होती है, ठंडी होती है, और वो भी स्पेशली कौन से एरियाज में, नॉर्दर्न एरियाज, नॉर्दर्न एरियाज में बहुत ज्यादा ठंडी होती है। इसके कारण क्या है, क्योंकि जनरली फेब्रुवरी मंथ में, कौन से मंथ में, फेब्रुवरी मंथ में कैस्पियन सी से क्या आते हैं, कोल्ड विंड्स आते हैं। कहां से आते हैं, कैस्पियन सी से कोल्ड विंड्स आते हैं। और ये जो कोल्ड विंड्स है, जब कोल्ड विंड्स अगर आएंगे तो अपने साथ में क्या करते हैं, कोल्ड एयर लेकर आते हैं, जिसके कारण नॉर्थ वेस्ट का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। देन उसके बाद में पंजाब, हरियाणा, उसके बाद में राजस्थान, यहाँ पर भी हमें टेम्परेचर कैसा मिलता है, कम मिलता है, लो मिलता है, क्योंकि यहाँ पर भी कॉन्टिनेंट टाइप का क्या होता है, क्लाइमेट होता है। देन यहाँ तो हमें क्या मिलता है, एक्सट्रीम कोल्ड मिलता है, मगर जैसे ही इसके अपर जाते हैं, हिमालयन रीजन में जाते हैं, सो इन सम ऑफ द प्लेसेस आपको क्या मिलेगा, स्नोफॉल भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से टेम्परेचर की अगर बात करते हैं, सो टेम्परेचर गोज डाउन इन विच सीजन, इन द ड्राई विंटर सीजन। और उसकी भी अगर इंडिया के दो पार्ट की अगर बात करते हैं तो नॉर्दर्न इंडिया का जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है, सदर्न इंडिया का उतना कम नहीं होता है। अगर प्रेशर की बात करते हैं, एयर प्रेशर की अगर बात करते हैं, तो हमने अभी बोला था कि जहाँ टेम्परेचर कम वहां पर एयर प्रेशर ज्यादा रहेगा, और जहां पर टेम्परेचर ज्यादा वहां पर एयर प्रेशर कम रहेगा। तो क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया में टेम्परेचर कम हो जाता है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया क्या होता है, डेवलप होता है, और वही साउथ के तरफ में लो प्रेशर जोन और लो प्रेशर एरिया क्या होता है, डेवलप होता है। सो इस विंटर सीजन में भी क्या होता है, रेनफॉल भी आता है। तो रेनफॉल देख लेते हैं, तो जैसा सेंट्रल पार्ट हो गया या तो फिर नदर्न पार्ट हो गया, किसका, पेनिनसुला का, ये पेनिनसुला का नदर्न पार्ट क्या करता है, ऑकेजनली रेनफॉल यहाँ पर होता है। कब, इन द विंटर सीजन। देन उसके बाद में देखेंगे कि साइक्लोन्स है जो कहाँ से आते हैं, मेडिटेरेनियन सी से आते हैं,
ये भी क्या करते हैं, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इन प्लेसेस में क्या करते हैं, रेनफॉल करते हैं। तो ये जो दिल्ली वगैरह पोर्शन में, हरियाणा पोर्शन में जो रेनफॉल होता है, इट इज मिगर, वो क्या होता है, बहुत कम होता है। अब कम होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता, कम होता है, मिगर होता है, इसलिए ये जो रेन है वहाँ के जो रबी क्रॉप्स के लिए क्या होता है, इट इज बेनिफिशियल, इट इज बेनिफिशियल। अब जैसे नॉर्थ ईस्ट पार्ट हो गया इसका, इंडिया का, यहाँ पर भी क्या होता है, रेनफॉल आता है, जैसा अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश एंड असम, यहाँ पर भी क्या होता है, रेनफॉल होता है, ज्यादा नहीं होता है, मगर लगभग लगभग कितना, लगभग लगभग 25 सेंटीमीटर से, सॉरी 25 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर तक यहाँ पर क्या होता है, रेनफॉल होता है। कहाँ, असम और अरुणाचल प्रदेश में। ये जो विंड्स रहते हैं, जब किधर आते हैं, कहाँ पर आते हैं, कहाँ पर आते हैं, रिट्रेटिंग मानसून के बाद में ये सीज के तरफ आते हैं और ओशियन के तरफ आते हैं। सो रिट्रेटिंग मानसून या विंटर मानसून जब कहाँ पर आते हैं, बे ऑफ बंगाल के इसमें आते हैं, तो कुछ मॉइस्चर वहां से वो क्या करते हैं, पिकअप करते हैं, और तमिलनाडु कोस्ट और आंध्र प्रदेश का सदर्न पोर्शन में क्या करते हैं, रेनफॉल भी देते हैं। सो विंटर सीजन में टेम्परेचर अगर देखेंगे तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, प्रेशर अगर देखेंगे, एयर प्रेशर अगर देखेंगे तो हाई हो जाता है, और रेनफॉल अगर देखेंगे तो हर जगह नहीं मगर कुछ जगह में हमें क्या मिलता है, रेनफॉल मिलता है। और विंटर सीजन का जो दिल्ली हरियाणा पंजाब वाला जो रेनफॉल है वो कैसा माना जाता है, इट इज बेनिफिशियल फॉर दी रबी सीजन। तो इस प्रकार से 4 सीजन्स का हमने डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। होप आपको सारे जो सीजन्स है वो क्लियर हो गए होंगे। हम है बहुत आसान भाषा में समझाएंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देन सेकेंड लास्ट टॉपिक के तरफ चलते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से होता है। सो ये जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन देखने के पहले हम ये देखेंगे कि जो रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कौन से फैक्टर्स के ऊपर अफेक्ट करता है, ये देखना बहुत जरूरी है। सो रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ का एयर प्रेशर कंडीशन कैसी है, साथ ही साथ में विंड का डायरेक्शन क्या है, या तो फिर साइक्लोनिक डिप्रेशन किस प्रकार का है, इन 3 चीजों के ऊपर। देखो 3 चीजें हमने कौन कौन से बोले थे, क्या बोले थे, एयर प्रेशर कंडीशन कैसा है, या तो फिर विंड का डायरेक्शन किधर में है, या तो फिर साइक्लोनिक डिप्रेशन कैसा है। इन 3 चीजों के ऊपर क्या होता है, रेनफॉल डिपेंड करता है। और जितना रेनफॉल आता है, हमने इंडिया के अलग अलग पार्ट्स को ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल क्या किया है, फिर से 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ऑलरेडी पहले ही जो रेनफॉल है वो क्या कर दिया है, नोट करके रख दिया है। पहला हेवी रेनफॉल रीजन। अब हेवी रेनफॉल रीजन किसको बोलेंगे, सो जिस एरियाज में, द एरियाज हु आर गेटिंग मोर देन 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। रेनफॉल कौन सा होगा, एनुअल होगा। सो द रीजन्स हु आर गेटिंग मोर देन 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, those areas or states comes in the category of heavy rainfall। अब ये जो हेवी रेनफॉल वाले जो एरियाज है वो कौन कौन से, तो वेस्टर्न घाट का विंडवर्ड साइड वाला एरिया, विंडवर्ड साइड यानी जिस साइड में क्या आते हैं, विंड्स आते हैं, कौन से, मानसून विंड्स आते हैं, वो वाला एरिया में हेवी रेनफॉल होता है। साथ ही साथ में मेघालय जो हिल्स है, जैसे गारो, खासी, जयंतिया, वहां पर हेवी रेनफॉल होते हैं। ईस्टर्न हिमालय में भी रेनफॉल ज्यादा है, कितना ज्यादा है, मोर देन 200 सेंटीमीटर है। असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दीज states or regions come in the category of heavy rainfall region, where rainfall comes annually more than 200 centimeter। second is moderate rainfall region। moderate का मतलब ही मीडियम होता है। so मॉडरेट रेनफॉल किसको बोलेंगे, जहां पर रेनफॉल की रेंज क्या होगी, 100 टू 200 सेंटीमीटर, जहां पर रेनफॉल कितना होगा एनुअली, 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होगा। ऐसे एरियाज और ऐसे रीजन्स आर सच स्टेट्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ मॉडरेट रेनफॉल रीजन। अब यहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल रीजन कहाँ कहाँ से आते हैं, सो नदर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, उसके बाद में तमिलनाडु का सदर्न पार्ट, उसके बाद में
मिडल गंगा वैली वाला जो एरिया है, उसके बाद में वेस्टर्न घाट वाला कुछ एरिया है, ईस्टर्न महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा आर सम ऑफ द एग्जांपल्स वेयर रेनफॉल कितना होता है, मॉडरेट टाइप का होता है, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होता है। सेकंड, हमने रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन किया है लो रेनफॉल रीजन्स, जहां पर रेनफॉल कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये जो एरियाज हैं हमारे इंडिया के कौन कौन से एरियाज हैं, तो सम पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, राजस्थान का कुछ पोर्शन आता है, उसके बाद में कर्नाटका का पोर्शन आता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तमिलनाडु, ईस्टर्न राजस्थान, हरियाणा और कुछ कश्मीर का भी कुछ एरिया आता है कहाँ पर, लो रेनफॉल रीजन में। और लास्ट वाला देखेंगे स्केंटी रेनफॉल रीजन, जहाँ पर रेनफॉल बहुत ही ज्यादा क्या है, कम है। एनुअल जो रेनफॉल है उसका जो कैलकुलेशन है, काउंटिंग है, वो बहुत ही कम होती है। कितनी, तो लेस देन 50 सेंटीमीटर वो आता है स्केंटी रेनफॉल में। सो पंजाब का सदर्न पोर्शन कहाँ पर आएगा, स्केंटी रेनफॉल रीजन में आएगा। वेस्टर्न राजस्थान स्केंटी रेनफॉल में आता है, और साथ ही साथ में लद्दाख वाला जो पोर्शन है वो भी कहाँ पर आता है, स्केंटी रेनफॉल एरिया में आता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल, हमने रेनफॉल का क्या किया है, फिर से 4 पार्ट में या 4 हिस्सों में उसको क्या किया है, क्लासीफाई किया है। आई थिंक नो नीड टू मेंशन हियर एग्जांपल्स, ऑलरेडी हमने उसको क्या किया, आपको ओरली बताया है। अगर कुछ कंफ्यूजन है फिर से एक बार हमारे वीडियो को देख लीजिएगा, और जब भी हमने बताने का प्रयास किया है साथ ही साथ समझाने का भी प्रयास किया है। देन मूविंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर क्लाइमेट, इट इज फीचर्स ऑफ द रेनफॉल। रेनफॉल का फीचर क्या है, तो रेनफॉल की विशेषता क्या है। अब ये जो पॉइंट, ये जो टॉपिक है बिल्कुल ही जनरल टॉपिक है, जो हम क्या कर सकते हैं, अपने मन से भी थोड़ा सा लिख सकते हैं, और थोड़ा सा अगर उसके बारे में सोचे तो हम भी उसके क्या बना सकते हैं, अपने आप से फीचर्स लिख सकते हैं। सो क्या, पहला फीचर तो यह है कि पूरे साल भर बारिश होती है क्या, नहीं। बारिश जनरली कब होती है, रेनी सीजन में होती है। तो पहला फीचर हमारा ये बन सकता है कि देयर इज रेनफॉल फॉर ओनली 3 मंथ्स, है ना। और ये जो 3 महीने में हमारा रेनफॉल कितना हो जाता है, 70% जो रेनफॉल है हमारे इंडिया में, अगर मान लीजिए साल भर में अगर 100% रेनफॉल आता होगा, तो 70% जो रेनफॉल है कौन कितने मंथ में आता है, 3 मंथ में आता है, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। जो जुलाई, अगस्त और सितंबर, हाँ हमने जून से लेकर सितंबर लिया है, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर रेनी सीजन में हमारा 70% रेनफॉल मिलता है, हमारा पहला फीचर मिल गया। दूसरा ये देखेंगे कि द रेन्स आर मेनली ऑफ रिलीफ टाइप, जिस प्रकार का रिलीफ रहेगा या रिलीफ बेसिस पर क्या करता है, रेनफॉल डिपेंड करता है। देन उसके बाद में देखेंगे विंडवर्ड साइड वाला जो है एरिया, विंडवर्ड साइड वाला जो एरिया, विंड के सामने वाला जो एरिया है, वहां पर आपको रेनफॉल ज्यादा मिलेगा, और उसका जो लीवार्ड साइड होगा वहां पर आपको क्या मिलेगा, कम रेनफॉल मिलेगा, रेन शैडो एरिया डेवलप हो जाएगा। सो ये दूसरा हमारा फीचर हो गया। तीसरा कि मोस्ट ऑफ द रेनफॉल वी आर गेटिंग फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, मोस्ट ऑफ द रेनफॉल वी आर गेटिंग फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। देन उसके बाद में ये भी है कि द क्वांटिटी एंड टाइम किसका, ऑफ रेनफॉल इज नॉट डेफिनाइट, या तो इज नॉट प्रेडिक्टेबल। अब कब बारिश आएगी हम नहीं बोल सकते, वो प्रेडिक्टेबल नहीं है। तो ये प्रेडिक्टेबल नहीं होने के कारण, क्या प्रेडिक्टेबल नहीं होने के कारण, उसकी कितना क्वांटिटी में बारिश होगी और कौन से समय पे होगी, द क्वांटिटी एंड टाइम इज नॉट प्रेडिक्टेबल। तो इसका असर ये होता है कि समटाइम्स फ्लड की सिचुएशन तैयार हो जाती है, तो कभी कभी ड्रॉट या सूखे की भी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और लास्ट जनरली देखेंगे, और आप अपने मन से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फीचर्स ऐड कर सकते हैं, बट 4 से 5 फीचर्स क्या है, सफिशिएंट है, क्योंकि आईसीएससी में आपको मैक्सिमम 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, और अदर बोर्ड्स में मैक्सिमम 4 मार्क्स के लिए क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा। सो इंडिया हैज एन एग्रेरियन इकोनॉमी, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, और मोस्ट ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर इज डिपेंड ऑन रेनफॉल, मोस्ट ऑफ द
इंडियन एग्रीकल्चर इज डिपेंड ऑन रेनफॉल। तो इस प्रकार से हमारे जो रेनफॉल है इसके क्या दिए हैं, फीचर्स दिए। आई ट्राइड टू गिव ऑल द टॉपिक्स इन टू मच इजी वे। होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त की मार्किंग क्या हो जाए, सही हो जाए। सो टेक केयर, गुड डे।